Very good morning, student. Today we are going to start chapter 8, that is a poem, and in this video we are going to complete the question answers of this chapter. So let us start understanding the question answers as well as doing the explanation part. Before going with question answers and explanation part, what we will do? We will read some fact about this chapter. So let's start reading the fact. First of all, we will start reading the fact about Swachh Bharat Abhiyan. So student, in Swachh Bharat Abhiyan we have some fact. Let's start reading it. Swachh Bharat Abhiyan is launched on 2nd October on the birthday of Mahatma Gandhi. Okay student, so what is Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission? When we are talking about Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission, so it is the same. Okay, Clean India Mission and Swachh Bharat Abhiyan is same. And on what date it was launched? It was launched on 2nd October 2014. Clear student? And what was it aimed about? It was aimed at teaching people about maintaining personal and public hygiene. ओके सो इसका एम क्या था? ये एम था, ये पर्सनल और पब्लिक हाइजीन से रिलेटेड इसका एम था. So you have to remember the fact that is when it was started, it was launched on 22nd October 2014 and it was aimed at public hygiene. Okay student, now start reading the book exercise first. First of all, we have the poetry composition. In poetry composition, we have fill in the blanks. What we have in fill in the blanks? First of all, we have first one should keep their city. क्या करना चाहिए? एक इंसान को क्या करना चाहिए? अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहिए. People sip the fruity and munch the chips and then throw the wrappers on the ground. लोग क्या करते हैं? लोग फ्रूटी जो है वो सिप कर लेते हैं, मंच कर लेते हैं, चिप्स को खा लेते हैं, एंड फाइनली व्हाट दे डू, दे ऑलवेज थ्रो द रैपर्स ऑन द ग्राउंड, एंड वी शुड नॉट डू दैट. हमें ये नहीं करना चाहिए ना. फ्रेंड वर्ड जो है उसका एक अपोजिट वर्ड है एनिमी. ओके, दिस इज द एंटोनिम ऑफ फ्रेंड. फ्रेंड वर्ड आपके इस चैप्टर में भी यूज किया, आपके इस पोम में भी यूज किया गया है. एंड द वर्ड यूज फॉर द एंटोनिम्स यूज फॉर फ्रेंड इज फो. डोंट बी अ फो ऑफ यू. फो मीन्स एनिमी. फो का मतलब क्या है? एनिमी. द वर्ड दैट राइम विथ ग्रीन. ग्रीन के साथ क्या वर्ड राइम की गई है? तो वो क्या है? क्लीन है. On 2nd October 2014, Government of India launched Swachh Bharat Abhiyan on the birthday of Mahatma Gandhi. Okay, now let's move to the question answer part so that we can understand that also. So first one is, what is taught to us in childhood? हमें बचपन से क्या पढ़ाया जाता है? Keep our surrounding clean is taught to us since childhood. हमें बचपन तक क्या पढ़ाया जाता है? वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. हमें अपने आसपास को साफ रखना चाहिए, हमें उनको गंदा नहीं करना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन, डू पीपल ओन अप टू थ्रोइंग गार्बेज इन द पब्लिक एरिया? पहला सवाल क्या पूछा? क्या लोग जो है गार्बेज को जब थ्रो करते हैं तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्या बच्चों? हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? वो हमेशा कंप्लेन करते हैं. ऑल्दो दे डू दैट देमसेल्फ, बट दे कीप ऑन कंप्लेनिंग. किसने किया? ओके, सो नो, दे नेवर ओन्ड अप थ्रोइंग गार्बेज. वो कभी भी इसको क्या नहीं करते हैं? वो कभी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं. और वो क्या कहते हैं हमारे इस पोएम में? वो कौन सा जो है
लाइन है जो सपोर्ट कर रहा है उनके वर्डिंग्स को, वो है हु थ्रू द गार्बेज, किसने यहाँ गार्बेज फेंक दिया, हमने तो नहीं फेंका, ऑल्दो दे आर डूइंग इट, वो खुद कर रहे हैं, बट when they are asked for that तो वो कहते हैं हमने तो फेंका नहीं. Okay, we never throw that. Now third one, what question does the poet ask regarding cleanliness? Poet cleanliness related क्या सवाल करता है? Is it so difficult to keep our city and surrounding clean? क्वेश्चन क्या करता है पोइट क्वेश्चन करता है, इज इट सो डिफिकल्ट टू कीप आवर सिटी एंड सराउंडिंग क्लीन, क्या ये इतना डिफिकल्ट है कि हम अपना सिटी और अपने सराउंडिंग को साफ नहीं कर सकते? सी स्टूडेंट, इफ इट इज अ क्वेश्चन देन इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क. ओके, व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे इन लास्ट स्टैंजा? लास्ट स्टैंजा में पोइट क्या कन्वे करने की कोशिश करता है? द पोइट कन्वेज टू कीप द सिटी क्लीन. पोइट क्या कन्वे करता है कि हमें अपनी सिटी को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. ओके, बिकॉज क्यों, दिस इज द ओनली वे टू बी हेल्दी एंड हेल्प आवरसेल्फ. क्यों? क्योंकि सिर्फ यही वो तरीका है जब हम हेल्दी रह सकते हैं और अपने आप को अपनी खुद मदद कर सकते हैं. हम कैसे खुद अपनी मदद कर सकते हैं? हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं बाय keeping a city clean, by maintaining hygiene around us. Okay, last one, what write the center idea of the poem? तो center idea क्या है poem का? The poem focus on teaching people that the importance of hygiene and keeping our surrounding clean. ये poem क्या बताता है कि हमारी जो hygiene जो है उसकी जरूरत कितनी ज्यादा है और इसके वजह से हमें क्या करना चाहिए, अपनी सिटी को, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द सेंटर आइडिया ऑफ पोम. और हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें अपने आसपास को साफ रखना चाहिए ताकि हम हाइजीन को मेंटेन कर सके. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. Thank you student for cooperating and studying with us. Now there is some instruction which you need to follow, that is complete book exercise within your textbook and question answer in your notebook. With this we have winding up this video.